Okay. See, given a particular state diagram, which is, let's say, किधर गया? This, this state diagram, I can teach you directly how to write the Verilog code of it. But the reason why I spent a good 1.5 hour explaining to you how to draw the hardware is because the first of all the motto of this course is think hardware, but also as hardware designers, I want you to describe hardware. क्या अभी तुम लोग को पता है वन हॉट कोडेड क्यों यूज करना चाहिए और एनकोडेड क्यों नहीं? अगर कम हार्डवेयर क्रिटिकल एप्लीकेशन नहीं है तो एनकोडेड जाओ, हार्डवेयर बचता है थोड़ा, क्योंकि 16 स्टेट मशीन का रहेगा तो 16 फ्लिप फ्लॉप लगने वाला है, विच कैन बी इजीली सेव्ड बाय यूजिंग 4. करेक्ट? यस और नो? So that trade-off you need to understand, but I always suggest go for one hot. But अगर FPGA में fit नहीं हो रहा है, ठीक है, then you come in as the knight in shining armor and say इसको encoded में कर दे, हो जाएगा. बोला fit हो गया, बोला भाई भगवान है तू. Because why? You know the internal matter ना, that if you use 4, the number of flip flops go down, the number of CLBs used also go down ना. But you are missing not the exact trade-off, क्योंकि encoder will also come into play. So it's a game you always play, trade-off. थोड़ा लेन देन तो होते रहता है डिजाइनर और FPGA के बीच में. Always, let me tell you one thing, in VLSI it's always a trade-off. फिजिकल में भी इसका कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगा, इसका ये कम होएगा, उसका ये नहीं होएगा, उसका ये होएगा, बहुत सारा चीज ऊपर नीचे होते रहेगा. That is designed for you. Okay, now let's try and visualize कि इसका Verilog code क्या बनेगा. Okay, what will be the Verilog code? Let's think, visualize. First, if I have states, how many states I have? State initial, compute and done. State 1, state 2, state 3. It's a fixed number of states. Can I say it's a fixed number of cases? Yes or no? State 1 मतलब case 1, state 2 मतलब case 2, state 3 मतलब case 3. मैं ऐसा सिग्नल बनाता हूं कॉल्ड एज सिग्नल, जिसका नाम देता हूं स्टेट, और उसको बनाता हूं 2 डाउन टू 0. ये हो गया तुम्हारा VHDL में. वेरीलॉग में इसको लिखेंगे रेज. VHDL में सिग्नल, इसमें रेज. बराबर? यस और नो? नाउ दिस स्टेट, इट्स अ रजिस्टर. प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद द वर्ड स्टेट. स्टेट, अभी रजिस्टर का नाम स्टेट है. वो भाई साहब क्या वैल्यू ले सकता है? फ्रॉम 000 टू 111. बराबर? यस और नो? ऑफ विच आई वॉन्ट हिम टू टेक ओनली 3 वैल्यूज. विच वन? 001, 1010 एंड 1000. ठीक है, अभी वो सब मेरे को गेम खेलना है, बट वो ये 8 वैल्यू में से कोई भी एक ले सकता है, हाँ या ना? हाँ, चलिए बनाया. अभी मैं क्या बोलता हूं? नाउ लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन. व्हेन आई राइट माय वेरीलॉग डिजाइन, would you like to read it from this perspective? Something like saying case state, बराबर? yes or no? केस स्टेट का ही केस निकलेगा ना. when my state is either what? 1-b 001, 1-b 010, 1-b, sorry, 3-b, 3-b, my mistake, 3-b, 3-b. Would you like to read it like this, or would you like to read it like this? Case state initial, okay, then what? Compute, correct, and done. Would you like to read your code like this or like this? Second na? You would want to read it like that, yes or no? Ideally. Suppose if your friend writes a 16 state machine design और सब डाल दिया 16B 00001, 16B 00010, बोला ये क्या लिख के लाया भाई, मेरे को नहीं मालूम. तूने तो मेरे को एक अच्छा सा सर्कल बना के दिया था जिसपे इतना अच्छा अच्छा नाम लिखा था, और अब इधर आके मेरे को ये बता रहा है. It's convenience of reading, yes or no? Then comes another character called as parameter. In your Esperanto guide, take a look at how to declare a parameter. So you'll say param
पैराम इनिशियल ओके इज इक्वल टू ओके है, वो सब सिंटैक्स है, मैं लॉजिक समझो, लॉजिक समझो. पैराम इनिशियल इज व्हाट 3-B001. सिमिलरली पैराम कंप्यूट 3-B010. समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये आगे चल के इनिशियल मतलब कौन 001 bless you means what param initial means what 001 no matter what it is initial will never change its value correct बराबर ना. so now when I say case state initial मतलब क्या initial is as good as saying I'm saying it as 001 compute is what 010 done is what 100 बराबर ना. लिखते टाइम और पढ़ते टाइम भी अच्छा लगेगा. ये सोनो कैसे? हाँ तो फिर 5 बिट का है ना तो हाँ यार नहीं कर सकता है तो फिर 5 बिट का लिखना उसको है अरे सब एक ही वेरीलॉग डिजाइन में है ना. हाँ अरे भाई तू ये पैराम बना क्यों रहा है मेरे को वो बोल. स्टेट को ही देने के लिए ना. कहाँ? हाँ लिख लिख मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर तू ये कोड इसको दे तेरे दोस्त को बराबर. उसको कैसे मालूम कि 3-B001 इज इनिशियल है. फिर ये मतलब अलग R&D लगाएगा तेरे लॉजिक को समझने के लिए बराबर. यस और नो. चल 3 कोड तो ठीक है 16 स्टेट का मशीन बना दिया फिर क्या. फिर तो ये जरूर आके बोले भाई तू पैराम डाल के मेरे को दे भाई. बोलेगा ना तू. हाँ आई नो हिम वेरी वेल. ये तो पक्का आके तेरे को बोलेगा. एंड यू ऑल्सो नो हिम वेल करेक्ट. ये आके बोलेगा कि नहीं तेरे को. हाँ तो डाल सकता है भाई. मैंने वही बोला था. आई सेड इनिशियली ऑल्सो दैट एट द एंड ऑफ द डे या यू कैन डू इट नो प्रॉब्लम. बट दिस डजंट इट इंक्रीज द लेवल ऑफ योर कन्वीनियंस व्हेन यू हैव टू रीड द डिजाइन. How would you like to read the code? Tell me, given to you by your friend. In terms of initials or in terms of this 3-B101010? How would you like to read it? तो मतलब जब जैसा तेरे को चाहिए तो वैसे ही लिखेंगे ना हम लोग. You're asking that why write it again, right? हाँ, so that it makes the code more readable. That's basically it. There's no other advantage to it. अभी तक तो बेटा NSL का प्राणी नहीं आया है. अभी NSL लिखूंगा ना उसके बाद तू मेरे को देख के बोल whether you want that 3-B00 is in place or not. Okay, let's understand this first. So case state is okay. Case state is, by the way, just putting it off the record. I can communicate with you all, right? Please, don't feel bad. Okay, now case state is, so I can write initial. अभी क्वेश्चन क्या है. इनिशियल में मेरे को कुछ करना है. यस और नो. इसका सिंटैक्स क्या ऐसा है ना. ओनली कोलन राइट. I always keep getting confused between this and VHDL. Okay, fine. Don't worry. As I said, syntax पे मेरे को नहीं पकड़ने का. हाँ. So initial. Now basically what I am in initial. इसमें दो चीज है. NSL है and OFL है. There are two aspects to it. For every state there is an NSL and then there is a OFL. So when I'm in a particular state, I can go to some other state, बराबर, under some conditions, and I have to do something in that state. Correct? Yes or no? So now let me ask you a question. I can write NSL in one case structure, na? And I can write OFL in another case structure. Yes or no? Possible? Case state initial ये इसमें NSL भर दिया. Case state initial compute done इसमें OFL भर दिया. बराबर. एक और क्वेश्चन है सर, दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते. करेक्ट? यस और नो? बोथ अप्रोचेस आर करेक्ट.
आई टेक द अप्रोच ऑफ कंबाइनिंग बोथ. केस स्टेट में आया, केस इनिशियल, एनएसएल पार्ट भाई आगे जाने का तैयारी, ओएफएल मतलब क्या अभी जो है उसका करने का. अंडरस्टूड? यस और नो? It is common sense, but it is my job to tell you, you can write it as two case statements. So that if any time you go into industry and that guy has not been taught by either me or Gandhi Puwad or anybody, okay, he'll write a two case statement. फिर तो बोलेगा भाई इधर एनएसएल क्या है, ओएफएल क्या है, मेरे को नहीं मालूम. वैसा नहीं होगा. यू शुड नो. आई कैन स्ट्रक्चर बोथ सेपरेटली. यस और नो? क्लियर? यस और नो? हाँ नहीं, यू शुड नो. इट इज माई जॉब टू टेल यू. Okay, now, so let's say initial. Can you tell me what the NSL is? NSL क्या है? X and so now initial में क्या है? I say if start बराबर. yes or no? State को क्या दोगे तुम लोग? अगर स्टार्ट आया तो अभी स्टेट क्या बनेगा? कंप्यूट ना. यस और नो? बराबर. अब मैं जानबूझ के एल्स हटा दिया. मतलब क्या? नहीं, लैच बनेगा अगर मैं एज सेंसिटिव प्रोसेस में नहीं है तो. याद है मैंने क्या बोला था? इफ यू आर इन अ क्लॉक्ड एन एज सेंसिटिव मतलब क्लॉक्ड प्रोसेस, and if I eliminate the else means it will give me a recirculating multiplexer. yes or no? बराबर. अगर clocked process नहीं है और फिर मैंने else हटाया तो क्या देगा? latch देगा. हाँ, latch देगा. understood? don't worry. everybody clear? हाँ. now इधर मैंने हटा दिया इसको जानबूझ के, क्योंकि मैं स्मार्ट डिजाइनर है, मेरे को पता है. else क्या करने वाला हूं मैं इधर? else state is what? initial only ना. इसको हटाओ या इसको रखो, क्या देने वाला है वो? सेम. तो याद है मैंने जब लेक्चर में बोला था यू कैन पर्पसली लीव इट प्रोवाइडेड यू नो व्हाट यू आर डूइंग. हियर वी नो व्हाट वी आर डूइंग, बट इफ यू आर एवर कंफ्यूज ना, शांति से एल्स कंडीशन डाल दो. एज अ स्टार्टिंग ऑफ डिजाइनर पुट दी एल्स कंडीशन. एल्स स्टेट इज व्हाट? इनिशियल. समझ में आ रहा है? प्लीज डोंट फॉरगेट दिस. एट द एंड ऑफ द डे दिस विल बी इन ए ऑलवेज. बराबर. ये उसी में होगा. अगर नहीं हुआ ना तो फिर बहुत बड़ा लफड़ा है, उसका नाम है कॉम्बिनेशनल फीडबैक. अगर मैंने इसको एज सेंसिटिव नहीं बनाया मींस आर दीज ट्रांजिशंस हैपनिंग एट द एज ऑफ अ क्लॉक? नो, राइट? means now you just created, now you made a big road with multiple junctions and suddenly you took the signals off. मतलब ट्रैफिक सिग्नल को निकाल दिया, धमाल चालू. yes or no? करेक्ट ना? सो थिंक, सी दिस इज हाउ वी थिंक एज डिजाइनर्स. कीप थिंकिंग लाइक दिस कि ये हटाया तो क्या होगा, वो हटाया तो क्या होगा. फाइनली तुम्हारा जो एग्जाम है वही होता है. आज बैठ के मैंने कल का मिड टर्म बनाया, मैं और गणेश बैठे थे, मतलब अच्छा इसको ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा डिजाइन बन गया मिड टर्म. बस फिर हम लोग देन वी स्टार्ट नेगोशिएटिंग, यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा कम करते. मतलब छोड़ना, सॉल्व करेगा बच्चा, मतलब नहीं थोड़ा कम करते. फिर उसका ऐसे, दिस इज आफ्टर नेगोशिएटिंग फॉर 2 hours देन वी अराइव एट अ एग्जाम. Okay, anyways, so now if start, this is what NSL. OFL means what? Now am I really worried about X load, Q increment? नहीं ना, डायरेक्टली लिखता हूं ना. X is what? X in. Y is Y in. Q is 0. क्योंकि अभी बिहेवियरल लेवल पे आया ना. लेकिन तुम लोग 1.5 छाने लोग हैं, तुम लोग को एग्जैक्टली मालूम है कि एक्स इज एक्स इन मतलब क्या सर? वो है ना, उसमें एक एनेबल होता है, वो एनेबल हाई होगा तभी जाके वैल्यू लोड होगा. मतलब इंटरव्यूअर एब्सोल्युटली फ्लोड लेफ्ट राइट एंड सेंटर, मतलब बिकॉज यू नो एट माइन्यूट डिटेल लेवल. यस और नो? दैट इज हाउ इफ आई वुड बी इन योर प्लेस आई वुड एक्सप्लेन इन एन इंटरव्यू. यू गो टू द बेयर बोन्स लेवल एंड देन यू स्विंग इट बैक अप अगेन. दैट शोज व्हाट? डेप्थ ऑफ नॉलेज. Okay, if you're very strong at a subject and you want to impress somebody, now don't take it at the don't go for width, go for depth first,
then swing it up and then go for width. That's how you explain. Just interview exam मतलब experience, that's all. Now is this clear? तो पहले क्या बनाया मैंने, NSL, फिर बनाया OFL. Correct, yes or no? So now let's see if we have the code. Actually wait, documents, notes. Now let's look at this code. I still have one lecture pending on teaching you all how to make asynchronous resets and synchronous ये सब कुछ. Okay, but I'm giving you one thumb rule first. The minute, so when I have just this, means what? It's an edge sensitive procedural block, yes or no? अगर और एक प्राणी आ गया ना, मतलब हिंट मानो कि ये कुछ एसिंक्रोनस करने को देख रहा है. क्या करने को देख रहा है? एसिंक्रोनस करने को देख रहा है. मतलब ऐसा थंब रूल सोच के रखो. दो प्राणी आ गया, मतलब दो एज सेंसिटिव प्राणी. Two edge sensitive characters in the sensitivity list means the tendency is very high to create something asynchronous in nature. Am I clear? Now, this is reset. Now what I'm doing is POSEDGE reset. If reset is 1, ये आया तुम्हारा asynchronous reset. Correct? See, this is the way of telling. See, I have to tell my synthesis tool now. HDL is what? Hardware description language. It is a way of describing to my synthesis tool, boss, I want to make a flip flop with what? Asynchronous reset. Correct? Yes or no? Everybody is following? Now, yesterday one question came up in the lecture. I'll re-raise it here also. Okay, but let's understand this first. I always said, at reset you must always have some state to go to, yes or no. So at reset always specify boss क्या करने वाले हो. बाकी किसी को करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं. सपोज तुम लोग ने ये नहीं किया, ये वाला पार्ट, मतलब ये सोचो था ही नहीं ये पार्ट कि एट इनिशियल स्टेटस, एट रीसेट स्टेटस इनिशियल. अभी सिंथेसिस टूल पूछेगा, अच्छा एक भाई लोग एक बात बताओ, ये रीसेट को भी क्या बोलते हैं अपना, इसका क्या करने का अपना XY रजिस्टर और Q रजिस्टर का, तुम लोग ने मेरे को बताया नहीं. ठीक है मत बताओ, मैं पुराना वैल्यू उधर एक रीसर्कुलेटिंग मक्स डाल देगा. मतलब एक्स्ट्रा हार्डवेयर पकड़ा, हाँ या ना. ओरिजिनली एक ऑलरेडी रीसर्कुलेटिंग मक्स था ना, हु वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय वन सिग्नल. नाउ दैट सिग्नल अगेन, उसमें एक रीसेट भी आ जाएगा बीच में, यस और नो. नाउ दैट फेलो इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय टू सिग्नल्स. बराबर. One is the recirculating signal, already that was there before. Now on top of that you're saying that recirculate when there is reset also. So one additional hardware आया, हाँ या ना. Did you intend to put that hardware there? Unintentionally डाला ना. हाँ, synthesis tool के साथ ऐसा गेम खेलते टाइम थोड़ा तो बोले सर then how do we crack this problem? Logical question, yes or no? हाँ, you give it don't cares. Why don't care देना? Means what? Now you've given the power in the hand of the synthesis tool, optimize as you want. See, when you put a don't care means what? You can optimize there. Are you able to follow? You're optimizing there ना. Don't care डाल दा मतलब you can then, everybody's done K-map reduction ना. तो optimize जिधर don't care है उसको cover करके फिर hardware कम किया जा सकता है ना. हाँ, so it is preferable to put don't cares. Only when you don't care. Put don't cares only when you don't care. Suppose if it's a register जिसको जीरो होना ही है तो उसको प्लीज जीरो करने का रीसेट पे. कोई नाटक नहीं उधर फिर ना. तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे एलिवेटर कंट्रोलर का जो लिफ्ट जो फ्लोर रजिस्टर है, ऑन रीसेट यू वांटेड टू बी जीरो, यस और नो. हाँ, तो उसको शांति से जीरो करने, उसको डोंट केयर कर दिया तो एक बार ऑन करते टाइम ये डालेगा, एकदम ऑन करते टाइम वो डालेगा. यू डोंट वांट दैट, यस और नो.
See, these are real life examples. You don't want to reset the register in a wrong way. Am I clear? Now, okay, now case state. Yes or no? Simple case state. ठीक है, केस स्टेट बराबर व्हेन इनिशियल, बिगिन एंड एंड क्यों डाला है? मल्टीपल स्टेटमेंट्स, वेरी गुड. सो इफ स्टार्ट देन स्टेट इज कंप्यूट. मैंने एल्स कंडीशन नहीं डाला, उसका मतलब क्या? रीसेट, इट विल होल्ड द ओल्ड वैल्यू. देन दिस वाज व्हाट? दिस वाज पार्ट ऑफ द NSL. This is part of the OFL. Correct? I'm saying X gets X in, Y gets Y in. Quotient gets 0. Now let me ask you a question. Is X getting X in immediately, or it will prepare X to get X in? Prepare. Please understand that. It will prepare X. Is quotient getting 0, or is it preparing it to get 0? Preparing it to get 0. Please understand that. कि क्या करेगा वो? Q इंक्रीमेंट को 1 करके रखेगा, फिर बोलेगा बेटा अच्छा जब क्लॉक आएगा तब क्या करना? Q को 0 से लोड करना या Q को इंक्रीमेंट करना. अंडरस्टूड? यस और नो? I have to still give you that homework of the timing diagram. You remind me, okay? That how you will make your homework will be one timing diagram of that divider that we made. उसमें पूरा चिट्ठा क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्या होता है. Now, let's continue. Now, next comes your compute state. If X is less than Y, if X is less than Y, then state is done. Understood? Else condition डालने की जरूरत है? डाल सकते हैं. Basically घूम फिर के उधर ही वापस आना है. So this will hold on to that value. Then, if not of X less than Y, which is as good as saying X greater than equal to Y, X is X minus Y, quotient is quotient plus 1. Now my question to you again, is this happening inside the state, or I am preparing X to be loaded with X minus Y and I am preparing Q to be loaded with Q plus 1? Preparing. Again, understand. If boss and madams, if this is happening in the same state, na, this in our language we are calling it a sin. अगर मैं बोला सेम स्टेट इज X को X minus Y से लोड कर, मतलब गेट खुला रखो ना, मतलब कॉम्बिनेशनल फीडबैक हुआ हाँ या ना? बराबर ना? विच इज अ सिन. करेक्ट? यस और नो? लॉजिकली समझ में आया? दिस इज समथिंग विच आई माइट डू ऑन द एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल इन द एग्जाम वी माइट एलिमिनेट वन, वो कहाँ ब्लॉकिंग को भी नॉन ब्लॉकिंग करके Q is Q plus 1 कर देगा, और नॉन क्लॉक प्रोसेस में. समझ गया ना? हाँ, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज निटी क्रिटी पॉइंट्स. इट्स नॉट देयर ऑन द मिड टर्म, दैट मच आई कैन टेल यू. फाइनल पक्के पे आ रहा है. ओके, सेम थिंग. If acknowledge is end basically. If acknowledge, correct, state is initial. Okay, any OFL in the done state? No ना, तो कुछ मत करो, वैसे का वैसे ही रहेगा. It will basically recirculate X and Y. Correct? Yes or no? Which is a register will hold its own value. Any questions? Okay. Now, your homework for the day. There are two homeworks. First, you have to draw a timing diagram. You made a note of all these signals, na? Your timing diagram will start with first a clock. ठीक है, clock से चालू करने का मतलब ऊपर सब. It's basically you have to draw this diagram. So start from top of the page. It's a written assignment. You have to write it, scan it, and then mail it. Write it, scan it, and then mail it. There you will first have your clock. Correct? Then you will have your start signal, which you will give initially. So this is at a positive positive edge triggered system. Okay? Understood? Yes or no? Now, sorry, you won't have start first. You will have
रीसेट। तो रीसेट को पहले एज पे इधर चाहिए तो इधर से करो, चलो पहले रीसेट को इधर 0 करो, करेक्ट, ऑलराइट। इधर सेंटर में 0 करके 1, नहीं वेट, लेट मी मेक इट अ लिटिल इजियर फॉर यू, ऐसा, ओके। तुम लोग के लिए वैसे क्या था कि मैंने फर्स्ट क्लॉक में दिया था, फर्स्ट पे दिया था, माई मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज द होमवर्क हैज टू बी स्टैंडर्डाइज सो दैट माई टीएस डोंट हैव टू रेक देयर हेड्स, ऐसे, ओके। So it will see a 0. At that time you have to tell us what is QI. रुक, reset दिया, then you give start. All signals you have to show together only because one is related to the other. हाँ, अच्छा एक्टिव हाई रखा, अच्छा ठीक है, सिंपल, रीसेट को पहले दे के फिर बंद करो, वेदर इज पॉजिटिव एक्टिव हाई और एक्टिव लो, डोंट वरी, ठीक है। मतलब ब्रिंग रीसेट डाउन एंड अप, ऑल आई वांट टू सी इज हाउ यू अफेक्ट रीसेट, एम आई क्लियर? हाँ, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार्ट, स्टार्ट को 1 दो और फिर 0 दो, दिस इज एट द सेकेंड एज, ओके, दिस इज हाउ स्टार्ट विल लुक, दिस इज द फर्स्ट एज, दिस इज द सेकेंड एज, अंडरस्टूड। स्टार्ट को 1 करके 0, यहां तक हो गया। You are going to draw the timing diagram of 9 divided by 2. Timing diagram of 9 divided by 2. Here are the following signals you will show. QI, QC, QD. Separately, यहाँ. बराबर. How is QI changing? How is QC changing? How is QD changing? बराबर. Then you have X, Y. X in Y in तो सबको मालूम है क्या है? 9 and 2, X, Y and Q. You drew that hardware ना, अभी उसको उस पे बेसिस पे टाइमिंग डायग्राम बनाओ. Then you have X load, Y load, Q increment, Q reset, बराबर, Q increment, Q reset and mux enable. Okay, you have to draw a timing diagram of this. Expect a question like this on the exam as well, फाइनल एग्जाम, एक टाइमिंग डायग्राम पक्का समझ में आया? एक बार वो ड्रॉ कर लोगे ना, पूरा चिट्ठा क्लियर, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग एट सिग्नल लेवल ना. अंडरस्टूड व्हाट इज टाइमिंग डायग्राम? मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बनाया था ना, डीले समझाने के लिए, वैसा बनाने का. हाँ, रीसेट इज एसिंक्रोनस. चल नहीं भी करेगा तो भी चलेगा, डिले अज्यूम मत कर, नो प्रॉब्लम. बट इतना तो पता है ना, क्लॉक चेंज हुआ इमीडिएटली तो नहीं होने वाला है, क्लॉक के थोड़े बाद तो होगा, उतना रिस्पेक्ट दे दे क्लॉक को. नहीं, यू आर राइट, फंक्शनल सिमुलेशन में डिले नहीं होता ना, फंक्शनल सिमुलेशन में डिले नहीं होता है, बट हम लोग थोड़ा देंगे. गुड क्वेश्चन, एक्चुअली इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. शुड वी शो डिले? शो अ लिटिल बिट, even if you don't show, it's still right. I'm not going to catch you on delay. My point is not to evaluate you on delay. My point is to evaluate you on whether you understand the functionality or not. Understood? That is homework number 1. Homework number 2 is to write this divider design from scratch to front pura. Verilog. Right, from module input में A in है, X in है, Y in है, reset है, बराबर, X in, Y in, reset, clock, end and start, बराबर. इनपुट्स पता ना, X in, Y in, reset, clock, start and end, बराबर. उसका पूरा वेरीलॉग डिजाइन लिखो. करेक्ट, यस और नो? ओके. Okay, so I covered mutually exclusive, all inclusive. You understood how to design a state machine, उससे हार्डवेयर कैसे बनता है, वो सब समझ में आया ना? करेक्ट. फिर डीले, व्हाट इज NSL, व्हाट इज OFL, व्हाट इज स्टेट मेमोरी, एनकोडेड, वन हॉट कोडेड.
बराबर. हाउ टू सी व्हाट इज डेटा पाथ यूनिट, व्हाट इज कंट्रोल यूनिट. अग्रीड, यस और नो. हाँ, दिस इज स्टेट मशीन डिजाइन. Now, what we will do is next lab session, which will be on Friday, Avinash will either भावनाओं को समझो, ठीक है. मतलब you're right, but मेरा मेरा वीक तो फ्राइडे से स्टार्ट होता है ना यार, आई एम सॉरी. ओके, you're right. हाँ, so on your next lab session, Avinash will probably cover voting machine. Have you all done the 7 segment display वाला ये lab? 7 segment कंट्रोलर बना दिया, चला के देखा हार्डवेयर पे, चला है नहीं ना. हाँ, तो पहले सैटरडे को पहले तुम लोग के नेक्स्ट लैब सेशन में क्या चलाने का, 7 segment चला के रखने का. फिर अविनाश भाई साहब आके समझाएंगे वोटिंग मशीन. वो वोटिंग मशीन का एक्सपर्ट है, मैंने उसको सिखाया, वो प्रॉब्लम नहीं है. बट ही इज लाइक, ही वो आधे नींद में भी वोटिंग मशीन बोलेगा. ओके, सो ही विल डू वोटिंग मशीन.